Hello students, welcome on YouTube channel Chemistry by शिवम एजुकेशन से। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कंटिन्यू है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करके ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एमाइंस पूरा अपलोड हो चुका है और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको इस चैप्टर की पढ़ाई बाकी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 1 by 1 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उन चैप्टर की भी पढ़ाई कर सकते हो इस चैप्टर के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो लेक्चर की जानकारी मिलती रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए, कोई भी लेक्चर मिस न हो। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल हम आपके लिए ही चला रहे हैं। इस चैनल के उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग में नहीं जा रहे या कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है, पढ़ना है और उसके साथ साथ अपनी नोट भी बनानी है और लगन से और जी जान से ये काम करना है, जिससे आप आपके और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे कर सको और जीनीट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नाउ इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस Riemann-Tiemann reactions. This is the most important reaction. In Riemann-Tiemann reactions, aldehyde group will enter in a ortho or para position of phenol. So first I am giving you reaction as it is. Starting material we have taken a phenol. Now this phenol is allowed to react with a chloroform and alkali. As alkali we can use either sodium hydroxide or we can use a potassium hydroxide. Now when we hit phenol with this 3 mole of alkali and chloroform, then this are the thing will be obtained as a byproduct 3 mole of sodium chloride and 2 molecules of a water. And as a result, aldehyde group will enter in a ortho position of phenol. Now our solution is alkaline, so we get here sodium salt of this compound. Now this will be as a intermediate compound. ये किस तरह से होता है उसकी एक रिएक्शन मैकेनिज्म है, this we will discuss in detail, but पहले ऐसे रिएक्शन देख लेते हैं. So we are getting this type of intermediate compound. Now very easy. Whatever intermediate compound obtained to us in the presence of dilute acid or by acidifying these solutions, just we can write reaction in this way: sodium combined with chlorine and remove in the form of NaCl, and as a result we get this structure. This product is known as a salicylaldehyde, and salicylaldehyde also one of common name. IUPAC name we can give in this way, already we have discussed. It is considered or known as a 2-hydroxy benzaldehyde. So this is nothing but 2-hydroxy benzaldehyde. The question होगा कि how this reaction occur. The most important thing is mechanism of this reaction. Now we discuss about mechanism of this Riemann-Tiemann reactions. We have taken a chloroform. In a chloroform, carbon is attached with 3 molecules of chlorine and this one H. So ये वाला हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक इन नेचर है. So hydroxyl group present from a or obtained from NaOH will act as a nucleophile and will attack on this hydrogen. So it will remove in the form of water molecule, and as a result we get this type of structure. Now bond electron is with a carbon. तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा कार्बन और H प्लस और OH एज अ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं. Now from here chloro group is the best living group, so chloro will remove and we get this type of structure. Carbon having a 2 electron and 2 chloro group, so this is known as a dichlorocarbene. So हमें dichlorocarbene मिलता है. This is the most important part of the reaction mechanism. So पहले हमें dichlorocarbene मिलेगा by mixing of chloroform with a alkali.
hydroxyl group will attack on hydrogen, remove in the form of water molecule. Then carbon हैंगे 2 electron and 3 chloro group, तो वैलेंसी बढ़ जाती है, then chloro will remove with electron pair. When chloro group remove with the electron pair, we get this type of structure which is known as a dichlorocarbon. Now in basic medium, phenol will be present in the form of phenoxide ion. So structure of this phenoxide ion we can write in this way: oxygen with a negative charge and 2 non-bonding electron pair. अब यहां से interesting thing है, this electron of oxygen will be resonance, और उसके resonance से electron density increase होगी either in ortho position or in para positions. So ये oxygen electron देगा इस कार्बन को, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगी. At the same time, this bond will break and electron will transfer on a ortho positions. So we get this type of structure. Now, these two double bond will be as it is. This double bond as well as this double bond will remain as it is, no any change. Now, double bond of carbon with a oxygen and it has a now 2 non-bonding electron pair. Now, this carbon having a negative charge and 2 electron. So this carbon give electron pair to dichlorocarbon. ये डाइक्लोरोकार्बन है, उस डाइक्लोरोकार्बन को ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा. Electron density will also present in a para position also, but we are getting ortho as a major product and para as a minute or very less product quantity. तब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, then we get this type of structure. Now in this structure, double bond here, this double bond as it is, no any change, and now this carbon having a 2 electron means a negative charge. This 2 electron carbon के as it is रहते हैं, this carbon है given electron pair to carbon, so ये कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया. और ये वाला बेंजीन रिंग का कार्बन है, तो बेंजीन रिंग के कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही, so it is as it is, no any change. Now our reaction medium is aqueous solution of NaOH we have taken. So in our reaction medium water molecule is already present. So ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए प्रोटोनेशन होगा. सो प्रोटोनेशन जैसे ही होता है हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि नाउ this double bond remain as it is, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन भी as it is है. अब कार्बन के पास 2 क्लोरीन और साथ में आ गया एक H. अब ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, इसमें दिक्कत ये है कि उसमें एरोमेटिक नहीं है. तो अब एरोमेटिक कैरेक्टर आने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड है, सिग्मा टू पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, और ये हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन खींच लेगा. तो अब ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दी, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया. दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मींस H विल रिमूव. सो यहां से H प्लस रिमूव हो जाएगा और हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें अब कार्बन के पास 2 क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ये डबल बॉन्ड बना. अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया. अब हमने रिएक्शन मीडियम में 3 मोल्स NaOH लिए, तो हमारे पास 2 मोल NaOH एज इट इज पड़े हैं. तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी थिंग है कि चलो इसमें से NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस है, तो ये दोनों सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और उसमें से मिल जाएगा हमें NaCl, लिबरेट हो जाता है और क्लोरीन की जगह आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और साथ साथ में रिएक्शन मीडियम में सोडियम भी अवेलेबल है, तो सोडियम में ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो कुछ स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिलेगा. नाउ दिस ऑक्सीजन विथ है सोडियम O माइनस Na प्लस. अब ये कार्बन इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन और ये दोनों क्लोरीन की जगह आ गए OH ग्रुप. अब रिएक्शन मीडियम में व्हेन वी हिट दिस थिंग्स, तो वेरी इजी थिंग्स कि यहां से एक ऑक्सीजन में से H और दूसरे में से OH, इसमें से रिमूव हो जाएगा वाटर
मॉलिक्यूल और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। तो हमें मिल जाता है ये प्रोडक्ट नाउ ऑक्सीजन विथ Na+ एंड यहां पर हमें आ गया एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। तो देखिए ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब तो सिर्फ बहुत ही आसान चीज है। नाउ एसिडिफाइंग ऑफ दिस सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए डाइल्यूट एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और रिमूव हो जाएगा NaCl के फॉर्मेट में। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमें मिलेगा हमारा मेन प्रोडक्ट aldehyde group in ortho position of phenol. So this structure is nothing but salicylaldehyde और 2-hydroxybenzaldehyde। तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, फिनोल को जब हम हीट करते हैं विथ क्लोरोफॉर्म एंड 3 moles ऑफ NaOH, तो इस तरह का हमें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिलता है। और जिस स्ट्रक्चर को डाइल्यूट एसिडिफाई करने से, डाइल्यूट एसिड से, हमें मिल जाता है 2-hydroxybenzaldehyde। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से शुरू होती है कि चलो क्लोरोफॉर्म और अल्कली को हम मिक्स करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन पर। अब यहां से क्लोरो ग्रुप, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है, तो क्लोरो ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और हमें मिलेगा डाइक्लोरोकार्बिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमें जो डाइक्लोरोकार्बिन मिला वो ये फिनोल बेसिक मीडियम में फिनोक्साइड आयन की तरह प्रेजेंट है। तो फिनोक्साइड आयन का ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को और ये कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। जब ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो हमें ऑर्थो ग्रुप पे एल्डिहाइड एंटर होगा और पैरा पे होगा तो पैरा में एंटर होगा, लेकिन ऑर्थो वाली प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पे देता है इस कार्बन को, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया। ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, यहाँ इसके पास हाइड्रोजन तो एज इट इज होगा ही और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब सिंपल है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो प्रोटोनेशन होगा एक्वियस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे आ गया H आ गया। अब इस स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक है कि इस स्ट्रक्चर में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एरोमेटिक कैरेक्टर्स, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल गिवन टू दिस कार्बन एंड कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन कार्बन के बीच बन गया डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने ऑक्सीजन। सो वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ इन आवर रिएक्शन मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अवेलेबल, सो दिस Na+ of sodium react with chlorine and remove in the form of NaCl और क्लोरीन की जगह आ जाता है स्ट्रक्चर में OH। In our reaction medium sodium is available, so oxygen will also react with sodium, तो ये सोडियम सॉल्ट मिलेगा। अब तो बहुत ही आसान है। Now whenever we heat this structure, OH from one carbon and H from another remove in the form of water molecule और बन जाता है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। So as a result, aldehyde group will enter and this will be our intermediate product. Now acidifying of these solutions, we get this 2-hydroxybenzaldehyde which is known as a salicylaldehyde. So dear students, in today's lecture we have discussed Riemann-Tiemann reaction, which is one of the most important reaction of alcohol, phenol and ether chapter. और yes, यदि आप इस चैनल पर वीडियो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और आपको एडवांटेज मिला, फायदा मिला, तो फिर उन बच्चों तक भी ये वीडियो चैनल की लिंक भेजिए, इस चैनल की लिंक भेजिए, जिससे वो भी आपकी तरह एडवांटेज प्राप्त कर सके।